کرنے کا انگریز نے پلان بنایا، مگر پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ انگریز جلاد نے کہا کیا شعر سنانا چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی نے فرمایا شعر میرا سن لیجئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ پیغام علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے دیا اور لوگوں کو بتایا نہ کوئی گل رہے گا، نہ کوئی چمن رہے گا، نہ کوئی دیا رہے گا، نہ کوئی مرد رہے گا، نہ کوئی عورت رہے گی، مگر مصطفیٰ کا دین صبح قیامت رہے گا۔ علامہ فضل حق آبادی پر مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جزیرے انڈمان کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سن 1861 کی بات ہے جب آپ کے بیٹے علامہ عبدالحق خیر آبادی اپنے والد محترم کی آزادی کا پروانہ لے کر کے مقدمہ لڑنے کے بعد جب آپ جیتے اور آزادی کا اور رہائی کا پروانہ لے کر کے جزیرے انڈمان پہنچے، سمندر سے باہر ہوئے، دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، علماء اور مشائخ ہیں، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے۔ قریب پہنچ کر کے علامہ فضل حق خیر آبادی نے علامہ عبدالحق خیر آبادی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، کتنی بھیڑ ہے، کون ہے، کون جا رہا ہے دنیا سے کہ یہ مشائخ اور یہ علماء اور یہ عوام اس کے لیے رو رہے ہیں؟ جب آپ نے سوال کیا تو مجمع سے کسی نے جواب دیا یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ میرے نوجوانوں تم کہاں گھوم رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے اسلاف نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے؟ کبھی بھی تمہارا سر نیچا نہیں کرنے ہونے دیا ہے بلکہ فخر سے ہمیشہ اونچا رکھا ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال جزیرے انڈمان میں 12 سفر کو ہوا۔ 12 سفر مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی دنیا سے گئے اور 28 سفر مجاہد مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سر ہندی دنیا سے گئے، وہ 11ویں صدی کے مجدد ہے، اور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی یہ 13ویں صدی کے مقتدا اور پیشوا ہے۔ مگر خدا کا انتظام دیکھیے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی سن 1861 میں دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے جانے سے 5 سال پہلے رب کائنات ہندوستانی مسلمانوں پر کرم یہ فرماتا ہے کہ سن 1856 میں ان کی جانشین کے طور پر ہندوستان کی سرزمین بریلی میں امام احمد رضا کو ان کا انتقال 25 سفر کو ہوا۔ ابھی بریلی شریف میں اسے مقدس ہوا ہے۔ یہ 3 تاریخیں 12 سفر، 28 سفر، 25 سفر، یہ اہل سنت کے نوجوانوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ کہیں سے نکل آئے ہیں، ہمارا رشتہ 1400 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب میں یہی تو فرمایا کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو شفاعت کا اختیار دیا ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں، اور یہی بات تو آگے چل کر کے میرے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، میرے رضا نے بھی تو ہم کو یہی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہزاروں نہیں کروڑوں محمد پیدا کر دے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کا جواب دیا تھا کہ
अल्लाह ने रसूल पाक को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अब क़यामत तक मुस्तफा जैसा कोई नहीं हो सकता है। यही बात तो मेरे आला हजरत भी कह रहे हैं। अल्लाह की सरफाबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिखा था कि हुजूर हमारे भाई की तरह हैं, गांव के चौधरी की तरह हैं, मगर मेरे आला हजरत ने हमको ये बताया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़्वतुल ईमान में ये लिखा था कि जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकता है, मगर मेरे रज़ा ने हम सबको ये बताया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उधर से वो जालिम अपनी किताब में लिख करके लोगों के अकीदे को यूं खराब कर रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद है उनके अंदर कोई इख्तियार नहीं है, वो कुछ भी कुदरत नहीं रखते हैं, मगर बरेली के रज़ा ने हमको ये बताया सूरज उल्टे पांव पलटे, चार इशारे से हो जा अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। उधर से कहने वाला कह रहा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर मेरा रज़ा कह रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। वो ये कह रहा था कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मगर मेरा रज़ा कह रहा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। ये तो हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम कटी पतंग नहीं हैं, हम कटी पतंग नहीं हैं, बल्कि हमारा रिश्ता यहाँ से वहां से होता हुआ मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा हुआ है। जो पतंग कट जाती है वो कहाँ जाके गिरती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का हाल ये है कि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और अगर इसी पर चलते रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें फना नहीं कर सकती है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 किताब लिख करके हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। 1000 किताब लिखी है आला हजरत ने, और एक तो सब्जेक्ट में नहीं, अब तो लिखने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले, तहकीक करने वाले स्कॉलर हजरात कह रहे हैं कि 300 इल्म से ज्यादा इल्मों पर महारत रखने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। आपने 1000 किताब में तकरीबन पहली तहकीक के मुताबिक 60 सब्जेक्ट को आपने अपनी किताबों में भर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आला हजरत को समझने के लिए जब कोई आला हजरत आएगा तभी वो समझ सकता है। इसलिए कि आला हजरत ने 60 इल्मों में जब किताबें लिखी हैं, 60 फनों में जब किताबें लिखी हैं, तो कमा हक़्क़हू उन किताबों को वही समझेगा जो 60 सब्जेक्ट पर महारत रखेगा। और मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो 60 सब्जेक्ट पर महारत रखता हो। इसलिए कोई आज आला हजरत से मुकाबला आराई की हिम्मत न करे। वो नबी का मौजज़ा है, गौसे पाक की करामत है, ख्वाजे पाक की इनायत है, मखदूमे पाक की दुआ है, कुल औलिया की करामत है। इसीलिए जो उनसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सोफिए मिल्लत, खलीफा हुजूर ताज शरिया। वक्त के मुताबिक मैं कुल और 20-22 मिनट आपका वक्त लूंगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस्लाम की हिफाजत, सुन्नियत की इशाअत और हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई का जो फरीजा अंजाम दिया, उसी का नतीजा है कि आज हर मिंबर और मेहराब से ये आवाज आ रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह ने करम फरमाया। बदमज़हब ये सोच रहे थे कि अब अहमद रजा गए, अब उनका मिशन चला जाएगा।
अब वो गए, अब हमें आफियत मिल जाएगी, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि दिल के रजा है खंजरे खुखार पर पार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। शायद वो समझते थे कि अहमद रजा गए, अब उनकी तहरीक इसके रिसालत जो तहरीक थी वो चली गई, मगर शायद उन्हें क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर अपने दो अजीम शहजादों को हिंदुस्तानी मुसलमानों की रहनुमाई के लिए छोड़ दिया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के बड़े शहजादे हैं, उनके इल्म व फजल का आलम ये था कि एक बहुत बड़े आलिम ने मुझसे एक बार फरमाया कि हम तो ये समझते हैं कि अगर आला हजरत के वो बेटे ना भी होते तब भी उनकी फजीलत में हमें दस्तबस्ता खड़े रहना पड़ता, इसलिए कि निस्बत की वजह से तो वो बड़े हाई हैं, मगर रब ने उनको इतना इल्म अता किया था कि वो अपने इल्म के बलबूते हिंदुस्तान में मुनफरिद माने जाते थे। ये हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म का हाल था। हुस्न और जमाल ऐसा था, मैंने किताबों में भी पढ़ा है, उलमा से भी सुना है कि जब वो अपने घर से बाहर निकलते, कभी बाजार की तरफ अगर जाना होता तो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, अगर उन्हें खबर लग जाती कि मौलाना हामिद रजा अपने घर से निकल रहे हैं तो उनके हुस्न और जमाल को देखने के लिए लोग अपने दरवाजे पर आ जाते थे। और न जाने कितने गैर मुस्लिमों ने सिर्फ उनको देख करके इस्लाम कबूल किया, ये सोच करके कि जब मुस्तफा का एक अदना गुलाम ऐसा हुस्न जमाल रखता है तो इसका आका कैसा हुस्न जमाल वाला होगा। उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ लिया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने कई किताबें लिख कर के उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई का फरीजा अंजाम दिया, और जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो अल्लाहु अकबर, वो अजीम ज़ात जिसने 92 साल की उम्र तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को फैज़याब किया, आला हजरत के छोटे शहजादे हजरत मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात है, जिनके तकवा, जिनकी परहेजगारी का आलम ये था कि उस वक्त जितने उलमा थे सबका इस बात पर इत्तेफाक था कि मुफ्ती आज़म से बड़ा हमारी जमात में कोई दूसरा मुत्तकी नहीं। हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसीलिए फरमाया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात इतनी अजीम थी, ऐसा तकवा, ऐसी परहेजगारी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा पाकीज़ा उन्हें बनाया था कि वो जिस गली से गुजर जाते उस गली में पाकीज़गी की खुशबू पैदा हो जाती। इसीलिए शायर ने कहा है, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने फतवा के जरिया, अपने तावीज़ात के जरिया, अपनी करामतों के जरिया, अपने तकवे के जरिया सुन्नियत को जो तक़वियत बख्शी है, माजी करीब में उसकी कोई मिसाल हमें नजर नहीं आती है। अभी परसों उर्से मुक़द्दस के मौके पर हुजूर मुहद्दिस कबीर आक़ाए नेमत शहजादे सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामद ज़िल्लुल आली ने अपना वाक़या बयान किया। फरमा रहे थे कि एक मौके पर मैं बरेली शरीफ रमज़ान शरीफ में हाजिर हो गया और तरावीह का मुझे भी मौका मिला कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ मैं भी नमाज तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, और संभल के एक हाफिज साहब तरावीह पढ़ा रहे थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अब बताइए, ऐसा आलिम रब्बानी जिस इमाम के पीछे होगा उस इमाम की क्या हालत रहती रही होगी, और वो भी नमाज तरावीह में, वो भी हाफिज साहब, बगैर किसी पीछे हाफिज अगर ना भी हो तो आदमी भूल जाता है उस
को लुकमे की जरूरत पड़ती है, यहाँ तो आलिम रब्बानी पीछे है, मुफ्ती आजम हिंद है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बयान फरमाया कि जब हम सरकार मुफ्ती आजम हिंद के साथ नमाज तरावी पढ़ने के लिए गए तो कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 20 रकात के बजाय कभी 26 रकात हो रही है, कभी 36 रकात हो रही है, कभी 40 रकात हो रही है। लोगों ने पूछा हुजूर ये को, फरमाया बात ये थी कि मुफ्ती आज़म हिंद जब नमाज पढ़ते थे माँ हो जाते थे याद इलाही में, और इस कदर मुस्तगरक रहते थे कि हाफिज कुरान जो कुछ पढ़ता एक एक लफ्ज की समाअत फरमाते और उसका माना भी समझते थे। बहुत सारे उलमा पीछे रहते मगर वो नहीं समझ पाते कि हाफिज साहब ने कहा गलती की है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद समझ जाते कि इन्होंने पढ़ने में कहा गलती की है। जो ही सलाम फेरते मुफ्ती आज़म बोल पड़ते कि नमाज नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ी जाए। सारे लोग बैठे रहते मगर किसी को पता न चलता। इस बुढ़ापे के आलम में 80 से ज्यादा उम्र को होने के बावजूद तरावी की नमाज जब पढ़ते जरा सी खामी अगर महसूस कर लेते तो फरमाते फिर से नमाज पढ़ी जाए। इस तरह से कभी 26 रकात पढ़ी जाती, कभी 36 रकात पढ़ी जाती थी। लोगों के पैर सूज जाते थे मगर अल्लाह का वो महबूब बंदा नमाज तरावी के एहतराम में किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ परवाह करता तो मसले शरीयत की परवाह करता। ये मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे का आलम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तकवा की ऐसी बहार अता फरमाई थी कि एक बार तशरीफ ले गए अहमदाबाद तशरीफ ले गए और इत्तेफाक से जिसके घर में जा रहे थे अभी कमरे में आपने कदम रखना चाहा कि ऐसे ही नजर उठा दी तो देखा कि सामने एक फोटो लगा हुआ था, टुकड़ा लगा हुआ था जिसमें फोटो बना हुआ था। आपने भी देखा होगा बहुत सारे फोटो इस वक्त बाबाओं के दादाओं के चल रहे हैं और ऐसी भी तस्वीरें हैं कि कुरान की आयत है और उसके बगल में किसी बुजुर्ग की बज़ाहिर तस्वीर बना करके लगा दी। ऐसी ही कोई तस्वीर लगी हुई थी जिसमें कुरान की आयतें भी थी और एक तस्वीर उसके अंदर बनी हुई थी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अभी घर में दाखिल हो रहे थे कि अचानक उस पर नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ी आपने कदम रोक लिया और फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, फेंको उसको वहां से, तुमने सनीमा घर बना रखा है, मैं यहां नहीं बैठूंगा। जो ही आपने डांटा घर वाले ने जल्दी से उसको उतार करके रख दिया। अब मुफ्ती आज़म हिंद जब अपनी जगह पे तशरीफ फरमा हुए तो फरमाने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये पढ़ने लगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बेसाख्ता आपकी जबान से जारी हो गए कलिमात। लोगों ने पूछा हुजूर क्या माजरा है? फरमाया देखो ये जो तस्वीर थी उसे देख करके मुझे जलाल आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने कह दिया कि उसको निकाल करके फेंको। लेकिन मैंने जब गौर किया तो उसमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। मैंने जो लफ्ज़ फेंको इस्तेमाल कर दिया, इस पर मुझे नदामत हो रही है कि उसमें कुरान की आयत भी थी और मैंने कह दिया फेंको। इस फेंकने में गोया एक तरीके से हो सकता है कुरान की उन आयतों की बेअदबी न समझ ली जाए, इसलिए मैं रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार। ये तक़वा था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कि रब कदीर ने उनको ऐसा ज़हन अता किया था। अदब कहाँ है, बेअदबी कहाँ है, बारीक बातों पर भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नजर रहा करती थी। ऐसे मुत्तकी परहेजगार के खलीफा का नाम हजरत सूफिए मिल्लत सूफी इफ्तिखार है। जाहिर सी बात है कि अभी कल ही एक जगह मैंने तकरीर में कह दिया और बात भी सही है, जैसा हाकिम जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा हाकिम वैसे महकूम, जैसा मुतवल्ली वैसी मस्जिद, जैसा नाजिम वैसा मदरसा, जैसा प्रिंसिपल वैसा इदारा। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। और जैसा वजीर आजम वैसा मुल्क, आप भी सब देख रहे हैं। तो जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द और जैसा पीर वैसा
बात समझ में आ रही है ना? जैसा मुर्शिद वैसा खलीफा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने के सिर्फ मुत्तकी ही नहीं थे बल्कि इमामुल मुत्तकीन थे। अपने जमाने के सिर्फ सूफी ही नहीं थे, इमामुल असफिया थे। सूफी जानते हैं किसको कहते हैं? सूफी का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसका दिल मिसले आईना इस तरह से साफ हो कि उसमें महबूब के जलवे हमेशा रोशन रहे, उसको सूफी कहा जाता है। और सूफी की शान ये होती है कि उसका दिल मिसले आईना वो किरणों को, तजल्लियात को अपने अंदर महफूज भी करता है और जिधर तवज्जो करता है उधर रोशनी भी बख्शता रहता है। उसको मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं जैसे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बस 10-12 मिनट और, जैसे समझ लीजिए आईने की बात आ गई है। सूरज निकलता है, सूरज जब तुलू होता है आप भी देखे होंगे, हम भी देखे